Hello everyone, welcome to economics class. We have already started to discuss about the national income and related aggregates. So far we have discussed about factor income and transfer income, then the concept of normal residence, then the concept of domestic territory. Today we will discuss about the definition of national income and its related aggregates. This is very important to learn these definitions and to understand the basic concepts because these are very useful while calculating national income. Means for the numerical portion you will have to learn these definitions properly along with their formulas. Let's start the topic. It's very easy topic. No need to worry about the topics. These are very easy. Now, the very first, this is about the concepts or the 8 concepts that we are going to discuss in today's video. This is net national product at factor cost, net domestic product at factor cost, gross national product at factor cost, gross domestic product at factor cost, and so and so. You can easily understand that the first 4 concepts are related with factor cost and the last 4 concepts are related with market price. So this is FC and this is MP. One more thing, you can understand that few concepts are related with net, few are related with gross, few are related with national, few are related with domestic. So we will discuss about factor cost, market price, then the concept of net, then the concept of gross, then the concept of national, then the concept of domestic. ये टॉपिक हमें अब डिस्कस करने हैं. Let's start the topic. The very first definition we are going to discuss about NDP at factor cost or domestic income. Dear students, you must keep in your mind when we are going to define a definition or an aggregate of national income on factor cost, we can call it as income. अगर आपके पास फैक्टर कॉस्ट वर्ड गिवन है तो हम इसको इनकम कह सकते हैं. क्लियर? अगर फैक्टर कॉस्ट है तो उसको इनकम कहा जा सकता है. जैसे हमने NDP एट फैक्टर कॉस्ट को लिया. जो फर्स्ट N है, इस N का मतलब है नेट, ये जो D है इसका मतलब है डोमेस्टिक, इस P का मतलब है प्रोडक्ट. फैक्टर कॉस्ट की वजह से हम इसको डोमेस्टिक इनकम कह रहे हैं क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पर आ रहा है. मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि फैक्टर इनकम, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर पेमेंट्स एंड फैक्टर अर्निंग्स, ऑल दीज आर सिमिलर कॉन्सेप्ट्स. फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर, हमने ये पढ़ा, हाउस होल्ड सेक्टर ओन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड producer sector hires or purchases the factors of production from household sector, and in return they pay factor payments or it will be included in the factor cost. So factor cost is equal to factor payments is equal to factor income is equal to factor earnings. So whenever we want to define a definition on factor cost, we will have a concept like this. Net domestic product at factor cost is the sum total of factor incomes generated in the domestic territory of a country during an accounting year. यहाँ पर पहले हमने ली factor incomes. As you have already studied in the previous videos that factor incomes are in term of rent, wages, interest and profit. Now, instead of wages, we are using the term compensation of employees. We will discuss about the details of compensation of employees in chapter number 4. This is very important. This is COE. This is a wider concept than the wages or salaries given in cash. उससे थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है. इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं.
हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। सो दोबारा से देखिए, नेट वर्ड है। नेट आपको थोड़ा सा याद होगा कि जब भी हम नेट कॉन्सेप्ट लेते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन नहीं आती। इसमें इंक्लूडिंग भी नहीं करना, एक्सक्लूडिंग भी नहीं करना, क्योंकि जो इनकम होती है उससे डेप्रिसिएशन का कोई कनेक्शन नहीं होता। अगर मैं आपको टीच कर रही हूँ तो मुझे उसके लिए मंथली सैलरी मिल रही है, इसमें कोई डेप्रिसिएशन अमाउंट है ही नहीं है। सो फैक्टर इनकम और फैक्टर कॉस्ट में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं आता। नेट का मतलब डेप्रिसिएशन लेना ही नहीं है हमें। डी मीन्स डोमेस्टिक, इट मीन्स द डोमेस्टिक टेरिटरी। फैक्टर कॉस्ट मीन्स फोर फैक्टर कॉस्ट, दैट इज़ द फैक्टर इनकम्स, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब आपको ध्यान क्या रखना कि ये जो COE है, दिस इज़ द रिवार्ड पेड फॉर द यूज़ ऑफ सर्विसेज ऑफ लेबर, ये आपको ध्यान रखना है। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज NDP at factor cost, also known as domestic income. Move to the second. This is gross domestic product at factor cost. So जो पहले वाला डेफिनेशन थी उसमें और इसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है कि यहाँ पर ग्रॉस आ रहा है, वहाँ नेट था या ग्रॉस है। वही डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि यहाँ फैक्टर कॉस्ट है इसलिए हम इनकम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ डोमेस्टिक है इसलिए हमने डोमेस्टिक वर्ड ले लिया। यहाँ ग्रॉस है तो ये आपका बन गया ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। ऑलवेज कीप इन योर माइंड, अगर कोई भी डेफिनेशन फैक्टर कॉस्ट पे, कोई भी एग्रीगेट फैक्टर कॉस्ट पे है तो हम उसको इनकम लिख सकते हैं। लेट्स डिफाइन द टॉपिक। लेट्स डिफाइन दिस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट refers to the sum total of factor incomes generated in the domestic territory of a country during an accounting year including depreciation। बस यही फ़र्क आ गया, वहाँ पर नेट था तो डेप्रिसिएशन नहीं आ रहा था, यहाँ पर क्योंकि ग्रॉस है इसलिए हमें, क्योंकि ग्रॉस है इसलिए हमें डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। सो नाउ लर्न द फॉर्मूला। GDP at FC is equal to compensation of employees प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, GDP एट FC इज इक्वल टू NDP एट FC प्लस डेप्रिसिएशन। व्हाट द पॉइंट, क्योंकि जो आपके पहले चार कंपोनेंट हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इस सब की जगह पर मैंने लिख लिया, इस सब की जगह पर मैंने लिख लिया NDP at FC plus depreciation. So you are to learn these formulas. These are very very important and will be used while calculating numerical questions. Now move to the next slide. This is the net national product at factor cost. अब आपके पास एक तो नेट है, नेट का मतलब डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। पहले हम कर रहे थे डोमेस्टिक इनकम, अब हम नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम। क्लियर बेटा, क्योंकि ये डोमेस्टिक नहीं है तो डोमेस्टिक नहीं आया, नेट है डेप्रिसिएशन नहीं है तो हम इसको नेट नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, नेशनल इनकम भी कह सकते हैं। जो नेट होता है ना उसके साथ हम नेट नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन इससे पहले वाली स्लाइड में यहाँ ग्रॉस वर्ड गिवन था आपके पास, अगर ग्रॉस है तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। इससे पहले वाले में आपके पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, हमने यहाँ नेट नहीं लगाया था। सो नेट में हमें नेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। नाउ दिस इज़ अबाउट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लेट्स स्टार्ट डिफाइनिंग। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट refers to the sum total of factor incomes generated in the domestic territory of a country during an accounting year including net factor income from abroad। यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ एक ही सेंटेंस, एक ही वर्ड का आ रहा है, दिस इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दिस इज टेरिटरी बच्चे, डोमेस्टिक टेरिटरी। सो इसको फिर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, NNP at FC is equal to compensation of employees plus rent plus interest plus profit plus net factor income from abroad। अब ये net factor income from abroad होता क्या है, देखो हमने डिस्कस किया था कि हमारे रेजिडेंट्स इंडियंस जो हैं
वो फॉरेन कंट्रीज़ में काम करते हैं और वहाँ से फैक्टर इनकम अर्न करते हैं। इसको हम कहेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। व्हेन द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया आर वर्किंग एब्रॉड and are earning income will come under the category of factor income from abroad. Similarly, foreigners are working in Indian domestic territory and they are earning factor incomes. It will come under the category of factor income to abroad. So, net factor income. Therefore, net factor income from abroad is equal to factor income from abroad माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सपोज करिए हमारे रेजिडेंट्स ने 250 करोड़ अर्न किए और नॉन रेजिडेंट ने इंडिया से 200 करोड़ अर्न किए, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आ जाएगा? 50 करोड़। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आगे हम इसको अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखेंगे कि पॉजिटिव को कैसे हैंडल करना है और नेगेटिव को कैसे हैंडल करना है। सो फिर से देखिए, अगर नेट है तो डेप्रिसिएशन नहीं है, अगर ग्रॉस है तो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, और अगर डोमेस्टिक है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं इंक्लूड होगा, और अगर नेशनल है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होगा। चलिए, हमने फर्स्ट 4 डेफिनेशंस लर्न की दैट वर ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर कॉस्ट। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज अबाउट the fourth concept. This is gross national product at factor cost. Gross national product at factor cost और gross national income, क्योंकि gross था तो gross आ गया, national था तो national आ गया, factor cost है इसलिए income आ गया। बाकी सारी definition वही रहेगी। Gross national product at factor cost refers to the sum total of factor incomes generated in the domestic territory of a country during an accounting year, including depreciation. Q? Because this is a gross concept. Then this is national. That's why including net factor income from abroad. Now, what's about the formula? GNP at FC is equal to compensation of employees plus rent plus interest plus profit plus depreciation plus net factor income from abroad. अब इसको जो पहले 4 हैं इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? NDP at FC प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या बन जाएगा? GNP at FC. दिस इज़ अगेन अ फार्मूला, यू विल हैव टू लर्न दिस फार्मूला। ये भी आपका फार्मूला था तो ये भी आपका फार्मूला था, इस तरह से करके आपने इनको फार्मूलाज की फॉर्म में लर्न करना है। सो विद दिस the first 4 concepts are clear. Move to the next. This is about the market price. Whenever you are to discuss about the market price, हमारा डिफाइन करने का मेथड चेंज हो जाएगा। ग्रॉस वर्ड है तो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन तो आएगा ही आएगा, डोमेस्टिक है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी भी आएगा। मार्केट प्राइस हमेशा ही फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। देखो बेटे, अगर हम किसी कमोडिटी के मार्केट वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें उसका मार्केट प्राइस भी लेना पड़ेगा। तो जब भी आपको डेफिनेशन कोई भी एग्रीगेट मार्केट प्राइस पर डिफाइन करना होगा तो डेफिनेशन हमारी क्या बनेगी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है? अबाउट द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि हमें इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करना। इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड करने से डबल काउंटिंग या ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम हो जाता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सो व्हाट यू आर टू कीप इन योर माइंड दैट sum total of market value of all the final goods and services produced within the domestic territory. Why domestic territory? Because we are discussing domestic product, including depreciation. Move to the next definition. This is net. Same definition रहेगी, बस वहाँ पर gross था तो including depreciation था, यहाँ पर net है तो excluding depreciation. Now read the definition.
Net domestic product at market price refers to the market value of all the final goods and services produced in the domestic territory of a country during an accounting year, excluding depreciation. Got it, beta? Move to the next. This is gross national product at market price. पहले तो मार्केट प्राइस वाली सारी डेफिनेशन आ जाएगी, फिर ग्रॉस की वजह से इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, नेशनल की वजह से इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. देन लास्ट, दिस इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अब ये ध्यान रखना, जहाँ जहाँ भी मार्केट प्राइस था ना, वहाँ मैंने इनकम नहीं लिखा, क्योंकि अगर कोई भी एग्रीगेट मार्केट प्राइस पर है तो हम नेशनल वर्ड, तो हम इनकम वर्ड नहीं यूज़ करेंगे. अब सारी मार्केट प्राइस है, इसका मतलब पूरी डेफिनेशन आप पहले ही बना लोगे. फिर उसके बाद नेट है, तो नेट में क्या नहीं होता? डेप्रिसिएशन नहीं होती, सो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. नेशनल है, इसका मतलब इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अब कुछ बातें ध्यान रखनी है, जब भी कोई एग्रीगेट फैक्टर कॉस्ट पर है तो हम इनकम वर्ड यूज़ कर लेंगे. अगर नेट में गिवन है तो हम नेट नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, हम सीधा ही नेशनल इनकम बोल देंगे, सीधा ही डोमेस्टिक बोल देंगे. लेकिन अगर ग्रॉस है तो फिर हम ग्रॉस लगाएंगे साथ में. और अगर कोई भी एग्रीगेट मार्केट प्राइस पर है तो हम उसको इनकम नहीं कहेंगे. सो विद दिस all the 8 definitions are clear to you, are explained. Now move to the next. अब हम थोड़ा सा कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे. कर चुके हैं हम ये कॉन्सेप्ट, सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ. अगर ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर दें, we will be able to get a concept or an aggregate in net. Similarly, if in a net aggregate depreciation is added, we will be able to find out gross. So इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में. ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस. मूव टू द नेक्स्ट. दिस इज अबाउट द मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट. अगर किसी एग्रीगेट को मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं. मार्केट प्राइस में से अगर हम NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, व्हेन net indirect taxes are subtracted from market price, we will be able to find the value in terms of factor cost. जैसे अगर हम NDP at MP में से NIT को माइनस कर दे तो सेम एग्रीगेट हमें मिल जाएगा एट फैक्टर कॉस्ट. ध्यान से देखो, NDP at MP माइनस NIT इज इक्वल टू NDP एट FC. आपको ध्यान क्या रखना, बाकी सब सेम रहेगा. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हम NIT को माइनस करेंगे. सिमिलरली, इफ़ वी वांट टू मूव फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, वी विल ऐड NIT. नाउ व्हाट्स अबाउट दिस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? बच्चे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस रेफर्स टू द indirect taxes minus subsidies. Indirect taxes are the taxes which are paid by producer sector to government sector, because these are the taxes which are levied on production sector. गवर्नमेंट का आपको पता है कि टैक्सेस लगाती है, हाउस होल्ड्स पर भी लगता है जिसको हम डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया. और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो प्रोड्यूसर सेक्टर पर लगते हैं, जैसे वैट हो गया, GST हो गया, ये प्रोड्यूसर सेक्टर पर लगते हैं. तो प्रोड्यूसर सेक्टर पर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं उसमें से हम सब्सिडीज़ को माइनस करते हैं. सब्सिडीज़ रेफर्स टू द फाइनेंशियल हेल्प गिवन बाय गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर सेक्टर टू एनहांस प्रोडक्शन. अगर हम ये कहें कि एक साल में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो 200 करोड़ पे किए गए थे गवर्नमेंट को बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर, और प्रोड्यूसर सेक्टर ने सब्सिडीज़ दी थी 150 करोड़ की, तो NIT कितना बचा? 50 करोड़. ये भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट्स में हम इनको डिस्कस करेंगे. अभी आपने फॉर्मूला क्या लर्न करना है कि जब भी आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, यू विल सब्ट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. इफ़ यू वांट टू convert an aggregate
from factor cost to market price, you should add NIT, that is net indirect taxes, where net indirect taxes are the difference between indirect taxes, that is the taxes paid by producer sector to government sector, and the subsidies, that is the financial help given by government to producer sector to enhance production activities. Move to the next. This is about the domestic to national. So whenever you have you have an aggregate in terms of domestic and you want to convert this into national, you should add net factor income from abroad, where net factor income from abroad means factor income from abroad minus factor income to abroad. Similarly, if you want to move from national, the concept of national, that is an aggregate in terms of national, to the aggregate in terms of domestic, you must subtract net factor income from abroad. मीन्स अगर मैं ये बात करूँ कि मुझे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में से अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस, तो एज इट इज़ ही आएगा, नेशनल की जगह मेरा बन जाएगा DP एट FC। बच्चे मेरा FC नहीं चेंज हुआ क्योंकि मैंने NIT को कंसीडर नहीं किया, मेरा ग्रॉस भी चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन को भी कंसीडर नहीं किया, मेरा सिर्फ नेट चेंज हो रहा है, ये नेशनल चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैं नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर रही हूँ और मेरे पास आ रहा है GDP। सो आई थिंक you have got the concepts. Move to the next. This is about a flow chart when net plus depreciation is equal to gross national product minus NFI IA, this is net factor income from abroad, this is domestic product, factor cost plus NIT, this is equal to market price। और इसको हम अपोजिट करेंगे, जैसे ग्रॉस में अगर हम नेट में आना है तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, मतलब ये इक्वालिटी का साइन है, तो दोनों तरफ ये इक्वेशन आपकी मूव करेगी। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। नाउ मूव टू द असाइनमेंट्स। बच्चे, यू आर टू लर्न एज वेल एज यू आर टू राइट ऑल द 8 डेफिनेशंस along with formulas in your notebooks। सारी की सारी आपने लिखनी है प्रॉपरली। देन सेकेंड है आपका क्वेश्चन, फ्लो चार्ट बनाना आपने कि जैसे ग्रॉस से नेशनल में ग्रॉस से नेट में जाना है तो क्या करना है, नेट से ग्रॉस में जाना है तो क्या करना है। जो लास्ट वाली 3-4 स्लाइड्स हैं उसको आपने फ्लो चार्ट के फॉर्म में करना है ताकि आपको फार्मूलाज भी लर्न हो जाए, कन्वर्जन भी लर्न हो जाए और डेफिनेशन भी लर्न हो जाए। क्यों? क्योंकि ये आपका बेस है आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क प्रॉपरली, बी सिंसियर, stay home, stay safe, and please complete your notebooks. Have a wonderful day.